Okay, dear students, today we are going to start a new topic. The topic today is copolymerization. Copolymerization is a process, is a polymerization method in which we prepare polymers which have more than one type of monomers. These type of polymers are known as copolymers. So copolymerization is just your polymerization reaction, the usual polymerization reaction which involves the and formation of long chains containing the repetition of same monomer. But in this case, instead of the same monomer, we have different monomers, more than one type of monomers. It can be two type of monomers, it can be three type of monomers. So these type of polymers which are generated using more than one type of monomers, they are known as copolymers. So maybe I have not mentioned it before, but the polymers which contain only one type of monomers, they are known as homopolymers. So there are two types of polymers, homopolymers and copolymers. Homopolymers are those type of polymers in which only one monomer is being repeated, whereas copolymers are those type of polymers in which more than one type of monomers are repeated. That means more than one type of molecules are there. For example, copolymer, you can see here, this is monomer A, this is monomer B, then there again is monomer B, then A. I have randomly written the sequence. There's not a particular sequence I'm trying to make here. This is just a random sequence. I'm trying to show you that the copolymers have different type of monomers in the chain, whereas in case of homopolymers, what happens that only single monomer is being repeated. So this is the difference between copolymer and the homopolymer. So I would like to discuss one example here. For example, here we have an alkene, ethene in this case. Here we have a carboxylic acid. This carboxylic acid is having a double bond at its beta carbon. So what happened when their polymer, this is monomer A, this is monomer B, and their this dimer is formed like this. So the addition reaction takes place, and what happens that we get a monomer dimer of this type, and this will further react again. This will again react with another ethene, and so on, and the sequence will be followed. Then I have another example. This is a very important example that I would like to discuss here. This is the formation of Buna S. You will find this example in most of the books, so make sure that you keep this example with you whenever you are discussing copolymers. So this is 1,3-butadiene, and this is styrene. We have a polymer of styrene, of homopolymer of styrene, that is known as polystyrene. तो polystyrene हमारे पास एक होमोपॉलीमर है जो हम यूज करते हैं. polystyrene आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, इससे बहुत सारी चीजें आपकी इससे बनी होती हैं इस पॉलीमर से. तो हम क्या करते हैं, इसका एक कोपॉलीमर बनाते हैं बाय पॉलीमराइजिंग इट विद 1,3-butadiene. तो इसमें क्या होता है, सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ हमारे पास बॉन्ड्स हो जाता है, ये यहाँ माइग्रेट करता है, ये इस पे ऐड हो जाता, अटैक करता है, एंड दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स दे गेट move forward, and we get a polymer which has this repeating unit. Okay, this is known as Buna S. So Buna S is a very commonly used polymer. It has huge commercial importance. ये हमारे पास टायर्स में यूज होता है जो हमारा Buna S है, और भी बहुत सी जगहों पर जो है हम इसको यूज करते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं कि ये टफ होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है. तो यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूंगी हम कोपॉलीमर्स क्यों जनरेट करते हैं. देखिए, जो हमारे पास नेचुरली जो अक्रीन पॉलीमर्स होते हैं या फिर जो मोनोमर्स होते हैं, उसमें कभी कभी ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कुछ अनडिजायरेबल क्वालिटीज आ जाती हैं. तो क्या हो जाता है, बाय मिक्सिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स एट टाइम्स हमें ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं. इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ जैसे जो आपकी नेचुरल रबर है, जो बिल्कुल एब्सोल्युटली नेचुरल रबर है, जो आप हमारे पास आइसोप्रीन का ये है पॉलीमर, अगर आप उसको देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं विच मेक इट अनडिजायरेबल, जो हमारे लिए जो है कमर्शियली इतनी गुड नहीं है. मतलब वो वाटर रिटेन करती है, उसमें एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, फिर वो ब्रिटल है. ऐसी बहुत सारी उसमें क्वालिटीज हैं विच मेक इट
अनफिट फॉर मल्टीपल यूज। आप पढ़ेंगे, जब आप 4th यूनिट पढ़ेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टोमर्स, उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं। बट जब हम उनको मिक्स करते हैं दूसरी मोनोमर्स के साथ तो क्या होता है, कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उनमें एनहांस हो जाती हैं, और कुछ जो उनमें जो कॉन्स होते हैं या जो उनमें मतलब नॉट सो गुड साइड होती है, वो जो होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें जैसे कि हमारे पास कोपॉलीमर्स में हमने देखा गया है इंक्रीज्ड इलास्टिसिटी होती है। तो हम जब भी इलास्टोमर्स या पॉलीमर्स की बात करते हैं तो हम इलास्टिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, उनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। बहुत बार उनका वाटर की तरफ वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन जो होती है वो उसकी तरफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ना, दे आर द रीजंस दैट वी टेंड टू प्रोड्यूस कोपॉलीमर्स। हम कोपॉलीमर्स की तरफ जाते हैं। बहुत बार एक जो किसी चीज का होमोपॉलीमर होता है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं which make it unfit for some use, then what do? We use it, we make it copolymer, and then some of its problems or what some of its issues they are resolved. So most of the things you see around yours, you are most of the times are copolymers. We hardly use those substances which are monomers. Most of the time हमारे पास जो ज्यादा हमारे आगे पीछे polymers होते हैं they are copolymers. उनमें ज्यादातर हमारे पास copolymers ही होते हैं। अब हमारे पास जो कोपॉलीमर्स है इसकी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले टाइप कोपॉलीमर की जो मैं डिस्कस करूंगी वो है रैंडम कोपॉलीमर, जिसे आपको नाम से ही पता चलता है। ये जो टाइप्स ऑफ कोपॉलीमर्स है ना, ये आर बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, कि मोनोमर्स जो है हमारे पास वो कैसे अरेंज्ड है। जो रैंडम, इसमें क्या होता है रैंडम कोपॉलीमर में, कि जो हमारी मोनोमर्स है ना, इनकी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कोई एक खास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कभी एक मोनोमर आ जाएगा, फिर दूसरा मोनोमर आ जाएगा, कोई इनका कोई सीक्वेंस नहीं है कि जिसके हिसाब से ये चल रहे हैं। दे आर रैंडमली लाइनिंग अप द मोनोमर्स। जो जो मोनोमर आता जा रहा है वो ऐड होता जा रहा है। जो जैसे कि बुनाएस है, उसमें कोई एक खास पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है, कभी ए ऐड हो जाएगा, कभी ए बी ऐड हो जाएगा, कभी बी बी ऐड हो जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन इट इज नोन एज रैंडम पॉलीमराइजेशन। इसमें कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है वो फॉलो नहीं होता है। फिर दूसरी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन हमारे पास है ब्लॉक पॉलीमर्स। ब्लॉक पॉलीमर्स में क्या होता है हमारे पास, कि इसमें हमारे पास चेन्स ऑफ होमोपॉलीमर्स होती हैं, लॉन्ग सीक्वेंस, मान लीजिए 100-200 यूनिट होंगे होमोपॉलीमर के, फिर दूसरा होमोपॉलीमर जुड़ता है। सो ये ब्लॉक्स में आता है। इसमें ट्राई ब्लॉक हो सकता है, डाई ब्लॉक। डाई ब्लॉक मीन्स दो मोनोमर्स होंगे, ट्राई ब्लॉक होगा, इसका मतलब पहले एक मोनोमर है, फिर दूसरे मोनोमर की होमोपॉलीमर की चेन है, फिर दोबारा पहले वाले की आएगी। तो मतलब ब्लॉक्स में होता है ये, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक पॉलीमर। और इसकी एग्जांपल है जैसे कि पॉलीस्टायरीन और पॉलीमिथाइल एक्राइलेट, इनकी जो है एक ब्लॉक पॉलीमर बनता है। इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि पॉलीमर्स जो है उनकी, इसमें मतलब एक्चुअल में मिक्सिंग, कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ पॉलीमर्स नहीं होती है, सॉरी मोनोमर्स नहीं होती है, इसमें वो ब्लॉक्स में रहते हैं, बट फिर भी वो उसकी ओवरऑल क्वालिटीज तो नेचुरली एनहांस करेगा ही। तो इसमें क्या होते हैं, ब्लॉक्स में रहते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ होमोपॉलीमर्स आर देयर, देन these chains of homopolymers they are linked to another chain of homopolymer। तो इसमें पॉलीमराइजेशन ही ऐसे हो सकती है कि पहले ए चलता रहे, फिर बी, या फिर ऐसा हो सकता है ए की चेन अलग सिंथेसाइज हो, बी की चेन अलग सिंथेसाइज हो, फिर वो लास्ट में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। फिर तीसरा टाइप हमारे पास है ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्टिंग, जैसे आपको पता है कि कोई एक चीज होती है, हम उस पर दूसरी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक डिफरेंट मोनोमर चेन इज ग्राफ्टेड इनटू अ ग्रोइंग होमोपॉलीमर चेन। इसका मतलब हमारे पास एक ग्रोइंग मोनोमर चेन है, यहाँ पर हमारे पास ए का सीक्वेंस चलता जा रहा है। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एक दूसरी चेन ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। दीज टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज ग्राफ्ट पॉलीमर्स। तो इसमें हमारे पास बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है कि एक्राइलेट चेन को जो है ना, हम नायलॉन का पॉलीमर है, उसमें हम एक्राइलेट चेन को क्या करते हैं,
ऐड करते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग करते हैं। देखिए ये जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ये जो हम दूसरे मोनोमर्स ऐड करते हैं, इनको कुछ सोच समझ के किया जाता है। उस किसी मॉलिक्यूल में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं कि वो ज्यादा हाइड्रोफोबिक होता है, वो मतलब बिल्कुल वाटर रेजिस्टेंट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा वो एब्जॉर्प्शन भी करे उसकी, तो हम उसमें दूसरा एक मॉलिक्यूल डालेंगे विच विल हेल्प इस चीज में। तो these different type of arrangements, this different type of polymers which are generated, they are based on certain requirements. Certain requirements are there which make us to go for different type of polymerizations. फिर एक और type of polymerization है हमारे पास alternating polymer। ये तो हो गया बिल्कुल sequential है। इसमें क्या होता है, ए बी ए बी ए बी, दैट मीन्स वन पॉलीमर अनदर पॉलीमर। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दी है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। सपोज यहाँ पर एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एक अमीन है। तो अब क्या हो जाएगा, जब इनकी पॉलीमराइजेशन हमारे पास होगी तो ये इस तरीके से होगी, इन दोनों में कंडेंसेशन होगी एंड वी गेट CH2 COOH, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O NH CH2 NH2। ठीक है, अब नेचुरल सी बात है, ऑन दिस साइड ओनली an amine can come and in this side only a carboxylic acid can come. So this type of arrangement is known as alternating polymers. So ये जो हमारे पास different type of polymers है ना, ये तो एक पार्ट है कि 4 किस्म के polymers हैं हमारे पास, लेकिन polymers की बहुत सारी टाइप्स हैं। लेकिन अब क्या है, हम इनको कंसोलिडेट करके we consider the copolymers or of these 4 types. Otherwise there are linear polymers, branched polymers, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं of the arrangement of monomers, कि जो copolymers है उसमें arrangement of monomers कैसे है। तो उसकी हमारे पास ये 4 किस्में हैं। तो ये चारों किस्में आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह we will go for kinetics of polymerization, sorry, copolymerization.